Let's see example number 5.2. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter. A. What is the magnetic moment of the magnet? B. What is the work done in moving it from its most stable to most unstable position? C. The bar magnet is replaced by a solenoid of cross section area 2 into 10 to minus 4 meter square and 1000 tons, but of the same magnetic moment. Determine the current flowing through the solenoid. So over here in this problem, in example number 5.2, data given is theta is equal to 30 degree, means bar magnet, or you can say makes an angle 30 degree with magnetic field having a magnitude 800 Gauss, means you can say 800 into 10 to minus 4 Tesla. Okay, and it experiences a torque 0.016 Newton meter. We know that when a bar magnet makes an angle theta, or you can say placed such that it makes an angle theta with uniform external magnetic field, okay, equal and opposite forces are act on it, okay, and hence net force is zero, but line of action of that forces are not same, so torque is act on it, and equation of that torque is, we know that tau is equal to what, mb sin theta. Okay, here in part A we have to find this magnetic moment m. Okay, so m is equal to, we can say, tau upon b sin theta. Okay, here value of tau is given, which is 0.016 upon b sin theta. B is 800 Gauss, here we can say 800 into 10 to minus 4 into sin theta. Theta is 30 degree over here, so it is sin 30. Okay, now let's simplify it. 0.016 upon 800 into 10 to minus 4. We know the value of sin 30 is 1 by 2. Okay, so if this half goes to numerator, then it becomes what, 0.032. So here, after simplifying this term, you will get the answer of magnetic moment 0.4 ampere meter square. So it is the solution of part A. Okay, now in part B of this problem, we have to find what is the work done in moving it from its most stable to most unstable position. Okay, so let's find part B. Okay, in part B, we know that most stable position, when magnetic मोमेंट अलाइन इट सेल्फ, और यू कैन से मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करती है, तब वो उसकी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन. वहाँ पे एंगल दोनों के बीच में कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करें, ठीक है, चलो यहाँ पे ये बार मैग्नेट बना देते हैं. ये बार मैग्नेट की एक्सिस है, ये एक्सटर्नल फील्ड भी ये डायरेक्शन में ले लिया है. ये अब देखो ये एंगल आपको थीटा दिया है, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री. अब जब मैग्नेट की पोजीशन, मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट जो ये डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन में, वो जब क्या करती है, अलाइन कर लेती है. कहाँ पे अलाइन कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये बार मैग्नेट कैसा हो जाएगा, बार मैग्नेट की जो नई पोजीशन होगी वो ऐसे होगी. ठीक है, तो इन दैट केस डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, वी कैन से इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो तब दोनों के बीच में एंगल जो होता है एम और बी के बीच में वो कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है. सो वी कैन से एट मोस्ट स्टेबल पोजीशन
position, theta is equal to 0. So इनिशियल एनर्जी मोस्ट हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है, मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन का इक्वेशन, एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। सो ये हो गया माइनस एम बी, ठीक है, कॉस ज़ीरो होता है 1, यानी कि ये हो गया माइनस एम बी, ठीक है। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे लेके जाना है, तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, जब मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है 180, ये पूरा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये डायरेक्शन में होगा और एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में होगा तब, यानी कि तब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180। सो वी कैन से एट मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे क्या होगा, एनर्जी गिनेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो वाली फाइनल पोजीशन क्या हो गया, माइनस एम बी, कॉस थीटा की जगह पे कॉस कर देते हैं 180, यानी कि पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया फाइनल एनर्जी। तो वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन का इक्वेशन में लिख सकता हूँ, वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिनना है अगर हमें, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल। तो फाइनल देखो आपको पता है फाइनल कितना है यहाँ पे, एम बी, माइनस इनिशियल वो भी कितना है माइनस एम बी, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स एम बी। 2 एम की वैल्यू हमें पता है कितना आया है 0.4, बी का वैल्यू था 800 गॉस, मतलब 800 इंटू 10⁻⁴। चलो, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस टर्म you will get the answer 0.064 जूल। ओके, तो ये हो गया वर्क डन का इक्वेशन। ओके, नाउ इन पार्ट सी ऑफ दिस प्रॉब्लम, चलो देखो पार्ट सी में यहाँ पे क्या पूछा है, पार्ट सी, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 1000 टन्स। मतलब ये जो बाहर मैग्नेट है उसको एक सोलेनॉइड से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एरिया आपको यहाँ पे दिया है, एरिया कितना है 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ओके, और नंबर ऑफ टन्स दिए है एन, वो कितने हैं 1000। बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमें सेम लेनी है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब एम हम लोग कंसीडर करेंगे 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था करंट। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन एम कितना होता है, NI A, तो आई को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो एम अपन क्या हो जाएगा N × A, ठीक है। चलो अब देखो m की वैल्यू अपने पास है, क्या है 0.4, n है कितना है 1000, एरिया भी आपको दिया है कितना है 2 × 10⁻⁴। चलो, तो ये टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद आपको करंट का आंसर मिलेगा 2 एम्पियर।